Welcome to Sharadil More English School online lecture. Good afternoon, student. In the lesson number 5, in introduction part, we have studied about the types of the matters. The matters are mainly classified into the two categories called element and compound. The elements are made up of only one type of the atoms, and compounds are made up of the more than one type of the atoms. Now we have to study about the different theories related to the एटम एटम से रिलेटेड क्या पढ़ना है अभी हम लोगों को डिफरेंट थियरीज नाउ फर्स्ट थियरी डाल्टन्स एटॉमिक थियरी फर्स्ट थियरी का क्या नाम है डाल्टन्स एटॉमिक थियरी नाउ सी द फिगर 5.2 जॉन डाल्टन द साइंटिस्ट portrait is given and the Dalton's atomic model is also given दोनों दिया हुआ इन फिगर 5.2 में तो व्हाट इज stated in the Dalton's atomic theory. Let's see. British scientist John Dalton put forth in 1803 AD his celebrated atomic theory. So in 1803 he put forth this theory called the atomic theory. According to this theory, matter is made up of atoms and atoms are indivisible and indestructible. According to this theory, the atoms are indivisible means we cannot break them further. उनको break नहीं कर सकते, उनको divide नहीं कर सकते and indestructible and we cannot destroy them also. All the atoms of an element are alike and all atom of an element किसी भी एलिमेंट के all atom are alike. Alike means same, एक जैसे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल एटम ऑफ हाइड्रोजन, तो जितने भी एटम्स है हाइड्रोजन एलिमेंट के ऑल विल सेम, वो सबके सब सेम होंगे, they are alike. While the different element have the different atom with the different mass, whereas the different elements, we are talking about the different element, then different elements have the different atoms and their masses are also different. उनके जो masses होते हैं वो भी क्या होंगे, different होते हैं. Try this. Take a solid ball and a bundi laddu. Press both this sphere with your palm. What did you find? What you have to do in this activity? You have to take the solid ball. Solid ball लेना है and bundi laddu. And you have to press both these sphere. दोनों sphere को palm से, palm means हथेली, हथेली में रख के उसको क्या करना, प्रेस करना है. What did you find? You will find that the bundi laddu will broken down into the small spheres. वो टूट करके क्या हो जाएंगे, स्मॉल स्फीयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. whereas the solid ball remain as it is, जबकि सॉलिड बॉल क्या रहेगा, ब्रेक होगा नहीं. सेकेंड एक्टिविटी, कट द सॉलिड बॉल विद द शार्प नाइफ. जो सॉलिड बॉल प्रेस करने से एज इट इज़ रह गया, उस पर कुछ इफेक्ट नहीं हुआ, उसको अब क्या करना है, नाइफ से कट करना है. नाइफ मीन चाकू. व्हाट डिड यू फाइंड? क्या आपको मिलेगा, मीन्स दैट सॉलिड बॉल विल बी कम्प्लीटली फिल्ड विद दैट मैटर. उस जिस मैटर का वो बना है, सपोज दैट सॉलिड बॉल इज मेड अप ऑफ द प्लास्टिक मटेरियल, तो that ball will completely and compactly filled with that plastic material. okay, अगर वो क्या है, पॉलीप्रोपिलीन का होगा तो there will be many infinite polypropylene molecule.
होंगे उसके। अगर वो आयरन का सॉलिड बॉल है तो दैट विल बी मेड अप ऑफ द आयरन एटम्स। ए बूंदी लड्डू इज फाउंड टू हैव ए इंटरनल स्ट्रक्चर। क्या हम लोगों को पता चलता है कि जो बूंदी लड्डू है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है? इट इज फॉर्म्ड बाय स्टिकिंग स्मॉलर पार्टिकल्स, और ये जो है छोटे छोटे स्मॉलर पार्टिकल से स्टिक होकर, ज्वाइन होकर, स्टिक होकर, चिपक कर बना होता है। द बूंदीज टू ईच अदर, हाउएवर द सॉलिड बॉल, broadly speaking, does not have any internal structure. The atom as described by the Dalton turns out to be a hard। डाल्टन ने जो एटम को डिस्क्राइब किया है उनके अकॉर्डिंग जो ये एटम्स होते हैं वो सॉलिड स्फीयर की तरह होते हैं, एंड दे डू नॉट हैव द इंटरनल स्ट्रक्चर, और उनमें कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता है। According to Dalton's theory, mass is distributed uniformly in an atom, or according to him, the mass of that atom distributed uniformly throughout the atom। उनके अकॉर्डिंग जो एटम है उसमें जो उसका मास है वो मास पूरे एटम में यूनिफॉर्मली, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, फैला होता है। The scientist J.J. Thomson demonstrated experimentally that the negatively charged particles inside an atom have a mass 1800 times less than a hydrogen atom. Okay. After the Dalton, the J.J. Thomson demonstrated experimentally, उन्होंने demonstrate किया। demonstrate मतलब करके दिखाना कोई चीज़। तो उन्होंने क्या किया, डेमोन्स्ट्रेट किया एक्सपेरिमेंटली कि दैट नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट इन द एटम्स हैव अ मास 1800 टाइम्स लेस देन द एटम ऑफ द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो मास है उससे भी 1800 टाइम्स कम मास का जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एटम में प्रेजेंट रहता है। मीन्स द इलेक्ट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय द जे थॉमसन। इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। लेटर दिस पार्टिकल वेयर नेम्ड एज इलेक्ट्रॉन। उसके बाद दैट पार्टिकल, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल नेम्ड एज इलेक्ट्रॉन, उसका नाम इलेक्ट्रॉन रखा गया। Common substances are usually electrically neutral. Common substances are usually electrically neutral. Obviously, the molecule of substances and atom which combines chemically to form the molecule are electrically neutral. Okay, now when we talk about an atom, then atom is electrically neutral. So what is the reason behind that? The reason is that the atom have the equal number of the positively charged particle and equal number of negatively charged particle, and the quantity of one positive charge equals to quantity of one negative charge. So even though it have the two different charges, positive charge and negative charge, its effect becomes zero because of the equal charges. How is an atom electrically neutral in the spite of the having the negatively charged electron in it? The Thomson overcame this difficulty by putting forth the plum pudding model of the atomic structure. तो क्या किया उन्होंने, इसके लिए प्लम पुडिंग मॉडल रखा उन्होंने, थॉमसन्स ने, इस डिफ़िकल्टी को ओवरकम करने के लिए, उसके ऊपर जो है जीत हासिल करने के लिए, या उसको जो है वो जो कमी थी उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने क्या किया, ये प्लम पुडिंग मॉडल रखा। Now observe the figure 5.3, the portrait of the J.J. Thomson and the atomic model given by him is also given alongside of the portrait of
His Now see here, the negatively charged and positively charged particles are uniformly distributed here. इसमें क्या शो किया है, जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो पार्टिकल्स है वो पूरे के पूरे जो है उस एटम के होल पार्ट्स में प्रेजेंट है. इट इज़ नॉट कॉन्सेंट्रेटेड एट पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर रीजन. किसी भी पर्टिकुलर एरिया या रीजन में वो प्रेजेंट नहीं है, बल्कि क्या है, वो पूरे के पूरे एटम में प्रेजेंट है. थॉमसन्स plum pudding model of an atom. So first, what is meant by the plum pudding? So here it is given that what is the plum pudding? The plum pudding or plum cake is the sweet dish prepared during the Christmas. In old times, this dish were made in the Western countries by adding the piece of the dried fruit called plum. These days, raisins or dates are used. ये पहले टाइम में वेस्टर्न कंट्रीज़ में, जो यूरोपियन कंट्रीज़ है, वेस्टर्न कंट्रीज़ है, उस कंट्रीज़ में ड्राई फ्रूट का यूज करके स्वीट डिश प्रिपेयर किया जाता था और उसी को बोलते हैं प्लम पुडिंग. बट नाउ डेज द रेजिन्स एंड डेट्स आर यूज्ड. अब आजकल जो है उसकी जगह पे रेजिन, रेजिन मतलब क्या होता है, मनुका जो होता है, किशमिश होता है, और डेट्स मतलब खजूर. तो खजूर और जो है किशमिश या मनुका जो होता है उसका यूज करके भी प्लम पुडिंग प्रिपेयर किया जाता है. नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द थॉमसन्स plum pudding model of an atom. Now you already seen the picture of the model, that the positive charge and negative charge are distributed uniformly throughout the atom. The plum pudding model of an atom put forth by the J. J. Thomson in year 1904. ये जो मॉडल उन्होंने रिप्रेजेंट किया, ये 1904 में रिप्रेजेंट किया. द फर्स्ट मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर. According to this model, the positive charge is distributed throughout the atom and negatively charged electrons are embedded in it. According to him, the positively charged particles are distributed throughout the atom and negatively charged electrons are embedded in it. जो negatively charged जो electron थे उसके अंदर embedded थे. embedded का मतलब क्या होता है, sinked, डूबा हुआ, उसमें डूबे हुए थे. The distributed positive charge is balanced by the negative charge on the electron. Therefore, the atom becomes electrically neutral. The positive charge and negative charge are balanced because the quantity as well as the number are equal. So that's why it is electrically neutral. Now, you can understand by taking the another example, the watermelon. You have seen the watermelon, you have eaten the watermelon. Now in watermelon, the part that we eat is fleshy and red in color. So that red color you can consider as the positive particles of an atom, and the black seeds, जो black seeds होता है उसके अंदर जो डूबा हुआ रहता है, ओके, डूबा ही रहता है ना, जब हम खाते हैं तो क्या होता है, थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है. तो सेम वही मॉडल उन्होंने क्या किया, प्लम पुडिंग मेथड से एक्सप्लेन किया. तो आप जो है वाटरमेलन को भी इसका एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं उस मॉडल को समझने के लिए, कि हाउ द सीड्स इन द वाटरमेलन आर सिंक्ड और एम्बेडेड इन द फ्लेशी रेड पार्ट दैट वी ईट. तो उन्होंने ऐसा एक्सप्लेन किया. ऐसा होता है क्या वाटरमेलन में कि सीड्स सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर पार्ट में प्रेजेंट रहते, नहीं ना, इट डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट दैट फ्लैशी रेड पार्ट, पूरे रेड पार्ट में वो फैला होता है. ओके, बट टुडे व्हाट वी नो अबाउट द एटम, that positive charge is only present in the nucleus of an atom and electrons revolves around the nucleus. But these informations are the earliest informations when the structure of atoms were
Now can you tell? Next part, can you tell if the striker flicked by misses sorry if the striker flicked by you misses the coin that you aimed at, where would the striker go? अगर आप क्या है, स्ट्राइकर फ्लिक बाय यू, जो स्ट्राइकर को आप फ्लिक करते हैं, मिसेस द कॉइन दैट यू एम, अगर वो क्या हो जाता है, जिस कॉइन को आप एम करके उसको हिट करते फिंगर से, वो मिस होता है, तो क्या होता है, वेयर वुड इट स्ट्राइकर गो, तो स्ट्राइकर कहाँ चले जाता है, जो बॉर्डर लाइन होता है उस बॉर्डर लाइन से स्ट्राइक होकर टर्न बैक होता है। इफ द स्ट्राइकर हिट द कॉइन इन विच डायरेक्शन वुड इट गो, अगर स्ट्राइकर ने क्या किया, कॉइन को हिट कर दिया, तो व्हाट हैपेंस, इट गोज इन विच डायरेक्शन, तो इट गोज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द अर्लीस्ट डायरेक्शन, वो क्या हो जाता है, या तो स्टॉप हो जाता है, या तो अगर क्रॉस लगा तो उसका डायरेक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, सेम डायरेक्शन में नहीं जाता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड टू ए साइड और इन द रिवर्स डायरेक्शन, तो स्ट्राइक करने के बाद जो स्ट्राइकर होता है, कैरम का जो स्ट्राइकर, वो या तो स्ट्रेट फॉरवर्ड या साइड में या तो रिवर्स डायरेक्शन में आता है। रुदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम, अब हम लोग रुदरफोर्ड के न्यूक्लियर मॉडल के बारे में स्टडी करेंगे, दैट इज़ गिवन इन 1911, और जिसके पहले जे थॉमसन थे, उन्होंने 1904 में वो क्या है, जो मॉडल था वो दिया उन्होंने। नाउ ऑब्जर्व द एक्सपेरिमेंट शोन इन द फिगर 5.4, रुदरफोर्ड स्कैटरिंग experiment, and below of that 5.5 the portrait of the Rutherford is given, उनका जो पोर्ट्रेट है, उनका जो पिक्चर है वो यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, नाउ सी द अरेंजमेंट गिवन इन द फिगर 5.4, फिगर 5.4 में क्या क्या अरेंजमेंट दिया है, लेट्स सी इट। नाउ सी देयर इज अल्फा पार्टिकल एमिटर, नाउ यू ऑलरेडी नो दैट अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, जो अल्फा पार्टिकल होते हैं वो किस पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो हियर देयर इज अ अल्फा पार्टिकल एमिटर, अल्फा पार्टिकल एमिटर है। सेकेंड, नाउ सी द फ्लोरोसेंट स्क्रीन, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, फ्लोरोसेंट स्क्रीन दिख रहा है, और यहाँ पे क्या है, स्लिट है, स्लिट मीन्स स्मॉल ओपनिंग, छोटी सी ओपनिंग है। एंड इन बिटवीन द फ्लोरोसेंट स्क्रीन द गोल्डन फॉइल इज टेकन, यहाँ पे गोल्डन फॉइल है, जैसे आपने देखा ना एल्युमिनियम फॉइल, सिल्वर फॉइल, देखा है क्या नहीं, सिल्वर फॉइल, सिल्वर फॉइल्स आर यूज्ड इन द स्वीट्स, स्वीट्स के ऊपर देखा होगा आपने सिल्वर फॉइल लगा हुआ रहता है, एकदम जो है स्टिफ के फॉर्म में कट किया हुआ रहता है, और जो दूसरे फूड प्रोडक्ट होते हैं उसमें भी सिल्वर फॉइल का यूज़ होता है। और एल्युमिनियम फॉइल, एल्युमिनियम फॉइल भी आपने देखा है, जो चपाती होती है उसको रैप करने के लिए, लपेटने के लिए जो है एल्युमिनियम फॉइल का यूज़ होता है। तो वैसे ही ये क्या है, गोल्डन फॉइल है, मीन्स इट इज़ मेड अप ऑफ गोल्ड, गोल्ड से बना हुआ, एंड इट इज़ वेरी थिन, उसकी जो थिकनेस है वो बहुत ही कम है, लो है। जैसे कि आपने देखा है पेपर, पेपर की थिकनेस बहुत कम होती है, सेम वैसे ही यहाँ पे भी उन्होंने क्या लिया, गोल्डन फॉइल लिया। नाउ लेट्स रीड अबाउट द एक्सपेरिमेंट डन बाय हिम एंड व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस, क्या क्या ऑब्जर्वेशन है वो हम लोग देखेंगे यहाँ पे, एंड लास्टली व्हाट आर द कंक्लूजन्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। The Rutherford studied the inside of atom by his celebrated scattering experiment and put forth the nuclear model of an atom in year 1911। तो 1911 में उन्होंने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बेस पे जो है एटम का स्ट्रक्चर दिया, फॉर्म किया। Rutherford took a very thin gold foil thickness 10 to power minus 4 mm
and bombarded it with the positively charged alpha particle emitted by the radioactive element. So for uh, दिस एक्सपेरिमेंट ही टेकन द अल्फा पार्टिकल एमिटर, एमिटर जो है ये जो एमिट करता है, रिलीज करता है अल्फा पार्टिकल, उसको लिया और उसके बाद में क्या है उन्होंने गोल्डन फॉइल लिया जिसकी थिकनेस 10⁻⁴ mm है and alpha particles are positively charged. He observed the path of alpha particle by means of the fluorescent screen around the gold foil. उन्होंने अल्फा पार्टिकल जो है, जो अल्फा पार्टिकल का जो रिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन जो हुए, उस डिफ्लेक्शन को उन्होंने फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे ऑब्जर्व किया, उसका डायरेक्शन क्या है और कैसा वो डिफ्लेक्ट हो रहा है, उसको उन्होंने किसकी हेल्प से ऑब्जर्व किया, फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे। तो व्हाट इज़ द फ्लोरोसेंट? फ्लोरोसेंट का मतलब ऐसा थिंग्स, ऐसा सब्सटेंस व्हेन द लाइट फॉल ऑन इट इट ग्लो, तो वो क्या होने लगता है, ग्लो होने लगता है, शाइन होने लगता है, चमकने लगता है। तो ऐसे मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, फ्लोरोसेंट। वैसा फ्लोरोसेंट पेंट आपने देखा होगा, जो लेन को डिनोट करने के लिए जो रहता है, वो लेन को वहाँ पे भी क्या है, फ्लोरोसेंट पेंट्स आर अप्लाइड ऑन द हाईवेज। और जो ब्रिजेस होते हैं, जो ब्रिज होता है स्पेशली इन घाट, जो घाट होता है उस घाट में जो है साइड बाय साइड फ्लोरोसेंट स्ट्रिप्स लगा रहता है, और वो फ्लोरोसेंट स्ट्रिप पे जब लाइट फॉल होती है तो क्या होता है, वो शाइन होता है और ड्राइवर को समझ में आ जाता है कि इसके बाहर जाना खतरा है। तो सेम वहाँ पे इन्होंने क्या किया, फ्लोरोसेंट स्क्रीन का यूज़ किया। He observed the path of alpha particle by means of the fluorescent screen around the gold foil. It was expected that the alpha particle would get reflected from the foil if the positively charged mass were evenly distributed inside the atom. अब उनके लिए ये एक्सपेक्टेड था कि अगर वो जो पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब हर जगह प्रेजेंट है, तो देयर शुड बी डिफ्लेक्शन। वहाँ पे क्या होना चाहिए, डिफ्लेक्शन, बिकॉज द अल्फा पार्टिकल इज पॉजिटिवली चार्ज और एटम जो है, एटम आल्सो कंटेन द पॉजिटिव चार्ज, तो देयर शुड बी डिफ्लेक्शन, वहाँ पे डिफ्लेक्शन होना चाहिए। ऐसा उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, ऐसा उन्होंने सोचा था। because you know that there is a repulsion between the positive charge, and there is repulsion between the negative charge. As it is given that in the J.J. Thomson's theory that the positive charge is distributed throughout the atom. So according to that theory, that alpha particle which is positively charged have to be deflected, वो डिफ्लेक्टेड होना चाहिए था उनके अकॉर्डिंग। Unexpectedly, the most of the alpha particle went straight through the foil. A small number of alpha particles get deflected from the original path through the small angle. A still smaller number of alpha particles get deflected through the larger angle, and surprisingly, one alpha particle out of the 20,000 bounce back in the direction opposite to the original path. जो एक्सपेक्टेड था उनको कि जो क्या है, अल्फा पार्टिकल क्या होना चाहिए, टर्न बैक होना चाहिए, रिफ्लेक्ट होना चाहिए गोल्ड फॉइल से, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज क्या है, पूरे उस गोल्ड के फॉइल में जो एटम्स है उस एटम में हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, बराबर बराबर फैला है। तो अकॉर्डिंग टू दैट क्या होना चाहिए, वो पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल टर्न बैक होना चाहिए था, रिफ्लेक्ट होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता है अनएक्सपेक्टेडली। लेकिन जो उनको एक्सपेक्टेशन नहीं था, व्हाट ही फाउंड, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल वेंट स्ट्रेट थ्रू द फॉइल, जो गोल्ड फॉइल था उस फॉइल से एक साइड से दूसरे साइड ज़्यादा से ज़्यादा अल्फा पार्टिकल क्रॉस करके चले गए।
वन साइड से कहाँ चले गए, दूसरे साइड। और ऐसा किसके केस में हुआ, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, ज़्यादा से ज़्यादा जो अल्फा पार्टिकल थे उसमें ऐसा हुआ। स्मॉल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल गेट डिफ्लेक्टेड फ्रॉम ओरिजिनल पाथ थ्रू ए स्मॉल एंगल। और बहुत कम नंबर अल्फा पार्टिकल का ऐसा था, मतलब बहुत कम अल्फा पार्टिकल थे जो थोड़ा सा एंगल, थोड़े से एंगल से अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हुए, अपने पाथ से हटे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो गए, एक साइड से दूसरे साइड चले गए बिना मुड़े। बट फ्यू, कुछ ऐसे थे जो क्या है सर्टन एंगल बनाकर क्या है वो डिफ्लेक्ट हुए, थोड़ा सा जो है बेंड होकर अपने पाथ से वो पास आउट हुए। एंड ए सिंगल अल्फा पार्टिकल आउट ऑफ 20,000 में से एक सिंगल अल्फा पार्टिकल बाउंस्ड बैक इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द ओरिजिनल पाथ। 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल बाउंस होकर एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में ओरिजिनल पाथ से टर्न बैक होता है, रिटर्न हो जाता है। The large number of alpha particles that went straight through the foil indicate that there was no obstacle in their path. Large number of alpha particles that went straight, जो large number of particle थे जो straight one side से दूसरे side में pass on हो जाते हैं, that means there was no obstacle in their path. It means there was no obstacle. Obstacle means what, जो रुकावट है। इसके मतलब क्या हुआ कि उसके बीच, उसके पाथ में, उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं था। बिकॉज ऑफ दैट दे पास्ड स्ट्रेट थ्रू वन साइड टू अनदर साइड। इट मीन्स दैट देयर मस्ट बी मेनली एन एम्प्टी स्पेस इनसाइड द एटम इन द सॉलिड गोल्ड फॉइल। Ultimately there is the space inside the atom इन द गोल्ड फॉइल। इसका मतलब क्या हुआ कि इस जो एटम है उसके बीच में स्पेस है, गैप है। द स्मॉल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल दैट गेट डिफ्लेक्टेड थ्रू द स्मॉल और बिग एंगल मस्ट हैव फेस्ड एन ऑब्स्टिकल इन देयर पाथ। और दोज अबाउट दैट अल्फा पार्टिकल हु deflected by making a small angle, they must have faced some obstacle। उन्होंने कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल फेस किया, रुकावट फेस किया। एंड बिकॉज ऑफ दैट दे बेंड टू सर्टन एंगल, और वो सर्टन एंगल तक क्या हो गए, बेंड हो गए। फ्रॉम दिस रुदरफोर्ड पुट फोर्थ ए न्यूक्लियर मॉडल फॉर एन एटम एज फॉलो। और क्या उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि अ, जो जो मास है, मास किसका, एटम का, वो किस में प्रेजेंट है, उसके सेंटर में प्रेजेंट है। ये उन्होंने कंक्लूजन निकाला। देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट सेंटर ऑफ एटम। देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट सेंटर ऑफ एटम। ऑलमोस्ट द एंटायर मास ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। उन्होंने क्या सोचा कि देयर इज पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ एन एटम। जो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है वो एटम के सेंटर में प्रेजेंट है। एंड ऑलमोस्ट ऑल मास इज प्रेजेंट concentrated in the nucleus. Third, negatively charged particle called electron revolve around the nucleus। और जो negatively charged particles है वो nucleus के around revolve होते हैं। The total negative charge on all the electron is equal to positive charge on the nucleus, and in an atom the total positive charge equals to total negative charge। as opposite charges are balanced, atom is electrically neutral। और ये जो है अपोजिट चार्जेस बैलेंस हो जाते हैं। बिकॉज ऑफ दैट
हाँ साइन कर दीजिए ज़रा, मैं स्लिप बना देती हूँ। वेट वो करवाती हूँ। चलो मैं साइन करो फटाफट, मैं 500 का स्लिप बना रही हूँ। 500 भी बना रहे हो? लास्ट ईयर का 500 का और यहाँ पर साइन उसमें मत कार बने नीचे। इस पे कर रहा हूँ ना, उससे हम कुछ कार नहीं बनाते फर्क हैं। पड़ता। इस पे रखा है तो कुछ नहीं। 1000 और ले लीजिए। नहीं 500। 500 का 1000 भी आपको नहीं, 500 का 2000। Okay, understood, student. So, what was the conclusion of the Rutherford scattering experiment? That the positive charge present in the nucleus of an atom. Second, the entire mass of the atom is concentrated in the nucleus and negatively charged particles revolve around the nucleus, and the positive and negative charges are equal in an atom and it is balanced, hence the atom is electrically neutral. There is an empty space between the revolving electron and atomic nucleus. तो जो revolving electrons है और जो nucleus है, तो there is space, okay, empty space, खाली space है. So these were the conclusion from the Rutherford's scattering experiment. An established An established law of physics: an electrically charged body is revolving in circular orbit, its energy decreases. एक जो है फिजिक्स में एक लॉ है, उस लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी रिवॉल्व होता सर्कुलर ऑर्बिट में, तो उसका एनर्जी जो है कंटिन्यूसली डिक्रीज होता है. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द एटम डिस्क्राइब इन द रुदरफोर्ड मॉडल टर्न आउट टू बी अनस्टेबल. तो इस लॉ के अकॉर्डिंग जो रुदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है वो अनस्टेबल है. In reality, however, all atom except the radioactive atom are stable. But रियल में जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट को छोड़कर जो अदर एलिमेंट्स हैं वो स्टेबल हैं. दिस शॉर्ट कमिंग ऑफ रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल वाज रिमूव बाय द एटॉमिक model put forth by Niels Bohr in the year 1913. अब according to Rutherford, the electrons revolve around the nucleus. नाउ इन द फिजिक्स देयर इज़ वन लॉ. फिजिक्स में एक लॉ है कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी भी सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, तो अगर वो रिवॉल्व करता है तो उसकी एनर्जी क्या होती है, डाउन होती है, डिक्रीज होती है. एंड व्हेन द एनर्जी डिक्रीजेस फॉल डाउन, देन रिवॉल्विंग दैट रिवॉल्विंग पार्टिकल फॉल्स इन द न्यूक्लियस. तो वो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस में गिर जाएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अगर कोई व्हीकल है, अगर कोई व्हीकल क्या हो रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट पे रिवॉल्व हो रहा है, और अगर उसमें जो फ्यूल है वो फ्यूल क्या हो गया, अगर ख़त्म हो गया तो वो क्या होगा, वो बीच में गिर जाएगा. ऐसा ही उन्होंने भी क्या है, उस यही जो है उनके शॉर्ट कमिंग हुई उनके मॉडल की. शॉर्ट कमिंग मीन्स कमी. And this is removed by the Niels Bohr in 1913, means after the 2 year of this theory. इस theory के 2 साल बाद both stable orbit atomic model in 1913. तो जो बोर नील हैं उन्होंने 1913 में जो है एटॉमिक मॉडल रिप्रेजेंट किया. In the year 1913, the Danish scientist Niels Bohr explained the stability of atom by putting forth stable orbit atomic model. और ये जो है उन्होंने ये मॉडल जो इसका नाम है स्टेबल ऑर्बिट एटॉमिक मॉडल, ये उन्होंने रखा. द इम्पॉर्टेंट पोस्टुलेट्स ऑफ द बोहर्स एटॉमिक मॉडल आर एज फॉलोज. पोस्टुलेट्स, what are the postulates? Postulates, you can say that possibilities. Before
रीचिंग टू कंक्लूजन पे पहुंचने के पहले जो अप्रॉक्सीमेशन लगाया जाता है, जो हो सकता है, जो पॉसिबिलिटीज़ है, उस पॉसिबिलिटीज़ को हम क्या बोलते हैं? पोस्टुलेट्स। ओके, कि ये ऐसा होगा, वो वैसा होगा, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो ये जो चीज़ें होती है, दे आर कॉल्ड पोस्टुलेट्स। The electron revolving around the atomic nucleus lie in the concentric circular orbit at the certain distance from the nucleus. The first postulate क्या है? The electron revolving around the atomic nucleus